A very warm welcome to all of you on behalf of the MAMC CHS Teachers Association. It is my proud privilege to welcome all of you and especially the speaker today, Dr. Rajendra Srivastav. As you all know, for the last 1 year, we have been battling COVID in our hospital. It has been a depressing time full of loss, heartbreak, and finally triumph. In this new year, we decided to start something new. And so we are deciding to start this webinars, which is initially in the hybrid mode and later will be completely offline. This will also give an opportunity to all faculty members to come together at least once a month and share a cup of coffee after the webinar. A very warm welcome to Rajendra Srivastav. He's a friend and a brilliant radiologist. I first met him about 25 years ago when he joined as a senior resident in Himalayan Institute of Medical Sciences, Jolly Grant. From there, he's gone on from strength to strength as a faculty member in the same institute, then in KMC Manipal, HOD in radiology in Muradabad, and he's now working in Sri Guru Ram Rai Institute of Radiology of Medical Sciences as professor of radiology. Dr. Rajendra is also a technical advisor to the Uttarakhand government on all matters technical. Rajendra is also interested in finance. He was not so interested at the time I knew him, but after that, he seems to be very interested and he's now, in fact, a certified investment advisor. He's been certified by many bodies, including the National Stock Exchange. He advises on retirement policies, on mutual funds, on shares. And it's a good thing to listen because all of us actually put our money into savings and into FDs. So there is something more to that. Very warm welcome, Dr. Rajendra, to you. Thank you, It ma'am. is all yours, Rajendra. Thank you, ma'am. Thank you very much. So today we are going to talk about personal finance. तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और लाइफ में कुछ अच्छा करें और खुश रहें. तो लकली मेरी लाइफ में अंजलि मैम जैसे लोग हैं एंड थैंक यू अंजलि मैम फॉर एवरीथिंग यू हैव डन. I am a good radiologist because of you and Dr. Ranjan Kukreti. So let us start because there are a lot of slides और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कम नहीं कर पाया. So questions will be at the end of session and my perspective of life and finance may not match yours. So it is totally acceptable. So I will talk about importance of money, common financial terms and definitions, and steps to manage finances. So I have cleared all many exams, but I am not here to sell any mutual fund or insurance, although legally I am authorized to do that. And it will be better that you discuss with your financial advisor. And मुझे खुशी होगी अगर आप लोग खुद अपने financial expert बन जाएं. Maybe 2 years, 3 years, but still you can. So why money is important? Money is a multiplier. आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आप छोटे अमाउंट पे कर पाएंगे. अगर आपके पास पैसा कम है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, उसी को आप 10 times, 100 times, 1000 times मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So what we are doing, we are putting lot of effort from the age of 14 years. Commitment, humiliation, risk, and क्या होता है कि हम जो पैसा कमाते हैं that is easily taken away by some financially wise and unethical. Most of them are unethical. They will be named by financial advisor, agent, share broker, relationship manager, executive, some fancy name, but they are all same. And our education system doesn't teach us anything about the finance. And believe me, it is a life-saving skill. You people are lucky who are in the government, central government job who will get index pension. But future is very dark. And if people don't learn about money, many of them will do suicide in future. So if you can become a good doctor, you can very easily become a good in personal finance. We are not going to become a chartered accountant or something. We have to just manage our money. So now coming to some terms. The problem is that terms are confusing and they are especially probably designed to make us confuse. Say for example, when you take some money from the bank,
इट इज कॉल्ड एज लोन. इट मे बी कार लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन. आपने पैसा लिया तो बैंक आपके ऊपर एहसान करता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं. लेकिन जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, इनफैक्ट बैंक आपसे लोन ले रहा है, लेकिन तब वो बोलता है हम आपकी एफडी कर रहे हैं, आपकी आरडी कर रहे हैं. फिर कंपनी लोन लेती है तो कंपनी बोलती है हम एफडी कर रहे हैं. गवर्नमेंट लोन लेती है, बोलती है हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं. इनफैक्ट वी आर गिविंग देम लोन एंड वी आर गेटिंग सम इंटरेस्ट. सो इस तरह से terminology is confusing but not difficult. So first important concept to understand is cost versus value. Cost is what you pay and value is what you get. आपको पता है, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, आपको पता है कि ये 2000 का होगा और ये दुकानदार 4000 का बोल रहा है. इसका मतलब यू नो द वैल्यू इज 2000 एंड शॉपकीपर इज आस्किंग 4000. और ये आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, उनको पता नहीं होता, वो ज़्यादा पैसे दे के आ जाते हैं. आप कभी शेयर्स खरीदते हैं तो आप ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा कॉस्ट पे शेयर खरीद लेते हैं. तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड कॉस्ट. Cost is not same as that of value. This is my own definition of richness and wealth. If you have more than what you need, it is rich. It will depend कि आप कैसा सोचते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है. एंड इम्पॉर्टेंट इज देश की इकोनॉमी कैसी है. अगर देश की हालत खराब है तो आपके पास कितना भी पैसा है सब बेकार है. 1 करोड़ रुपए किसी गरीब बंदे के लिए बहुत रिच हो सकता है और बड़े बिजनेसमैन के लिए इट कैन बी जस्ट 1 मंथ इनकम. वेल्दी मीन्स यू शुड हैव कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े, और इट शुड बी मोर देन योर नीड, and you should have time and health to enjoy it. This is not given in the books. So please remember, if you are rich but you don't have health, that is waste of money. So try to become wealthy, not rich. So I will give you 30 seconds. You can think what among these is asset and what is liability. So asset is which brings money in your pocket. There are financial asset and non-financial asset. आपकी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, आपकी जॉब है, आपकी अपनी स्किल है, बैंक में एफडी कर रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट. नॉन फाइनेंशियल एसेट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. और आईटी के ज़माने में हमने खूब देखा है, व्हाट्सएप एंड ऑल दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपकी ब्रांडिंग, अगर आपकी कोई चीज़ 20 रुपए की है और आपकी ब्रांडिंग अच्छी है तो आप उसी को 40 रुपए में बेच सकते हो. और if you are in a hospital, good employees and good health is your asset. Good health because you can earn more number, work more number of hours, और जितने भी आवर्स आप काम करेंगे आपकी इफिकेसी ज़्यादा होगी, और यू कैन वर्क मोर नंबर ऑफ ईयर्स. 60 में रिटायर होने की जगह आप 65-70 तक काम कर सकते हैं इसलिए. लायबिलिटी, वॉट एवर टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउस. सब लोग अपने घर को अपना एसेट मानते हैं. घर आपका एसेट नहीं है, घर आपकी लायबिलिटी है. आपका बिजली, पानी, फर्नीचर, मेंटेनेंस, एवरीथिंग आप उसमें हर दिन पैसा लगाते हैं. सो इट इज टेकिंग मनी अवे फ्रॉम यू. योर कार अनटिल अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में आपको 4 जगह नर्सिंग होम जाना है, आपको कार चाहिए, देन इट इज योर एसेट, अदरवाइज इट इज लायबिलिटी. बैड हैबिट्स एंड बैड हेल्थ. सो इन्फ्लेशन इज महंगाई. जो गवर्नमेंट हमें डाटा देती है 4% महंगाई, 5% महंगाई, वो हमारे लिए फिट नहीं है. हमें कम से कम 8 से 10% की महंगाई झेलनी पड़ती है. आप कुछ भी चीज लेते हैं, पहले चाहे 10 रुपए की एक कप आती थी, अब वो 10 रुपए की आधी कप आती है. ऐसे ही आप एजुकेशन और हेल्थ में तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी रेमडेसिविर लग रहा था इंजेक्शन, तो वो 4,500 का है. So this all is more than what government claims. So आपके लिए महंगाई दर जो गवर्नमेंट बता रही है उससे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है. और उस महंगाई का फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे आपने बैंक में एफडी करी और बैंक आपको 5% रिटर्न दे रहा है और महंगाई 8% है, तो आप 3% लॉस पर हैं. आपको 1 साल बाद 105 रुपये मिलेंगे, लेकिन उस 105 रुपये में वो आप सामान नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उस सामान की वैल्यू 108 रुपये हो चुकी होगी.
तो रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न है कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिलेगा रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न, तब आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन ये डॉक्टर्स में बहुत कॉमन है। जैसे ही इनकम अर्न होती है हम डिस्प्रपोर्शनेटली अपनी एक्सपेंस बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है और 1,10,000 या 20,000 हुई, लेकिन आप खर्चे बढ़ा के 1,50,000 तक ले जाते हैं। आपको फिर बड़ी कार चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए। आपका एक दिन पहले तक सेम चीज़ों से काम चल रहा था, एक दिन बाद अचानक आप अमीर हो जाते हैं। सो इट इज लग्जरी ऑन लोन is a bad idea. Power of compounding is the eighth wonder. और बेसिकली क्या है कि आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, नेक्स्ट ईयर इस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो इसको समझने के लिए दिस येलो वन इज द ओरिजिनल मनी यू हैव डिपॉजिटेड एंड दिस वायलेट इज द इंटरेस्ट। इनिशियली दिस विल बी वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा यू विल सी दैट इट इज डिसप्रपोर्शनेटली ग्रोइंग। तो आपने ओरिजिनल तो कम जमा किया है और आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स एवरीवेयर। आपकी नॉलेज में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी विजडम में और आपके पैसे में। सो कुछ नंबर से समझते हैं। मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया। तो इंजीनियर ने 24 ऑफ ईयर्स एज से पैसे जमा करने शुरू करे एंड 6 ईयर्स तक उसने 25,000 पेमेंट करा पर मंथ, किसी म्यूचुअल फंड में लगाया, 9% रेट ऑफ रिटर्न है। और 30 ईयर्स के बाद उसने लगाना बंद कर दिया, बट वो पैसा उसी में बना रहने दिया। दैट मनी एज इज ग्रोइंग। तो इट कम्स अराउंड 4,82,00,000। बट आपने कमाना लेट स्टार्ट करा और आपने कंटिन्यूअस 30 ईयर्स तक डिपॉजिट करा, उसने केवल 6 ईयर डिपॉजिट करा था। तब भी आपने 5 टाइम ज़्यादा डिपॉजिट करने के बाद भी आपका रिटर्न उससे कम होगा। अब ये बंदा जो है ये बंद तो करेगा नहीं, ये कंटिन्यू करेगा, तो आपसे 3 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इसको। आप सोचोगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं डबल अमाउंट से SIP शुरू कर लूँगा, पैसे इन्वेस्ट करूँगा, तब भी आपका रिटर्न जो है ओवरऑल इट विल बी लेस, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द other person who has invested half the amount of your money. So time is very important. So ये क्वेश्चन आता है कि मुझे फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, मान लीजिए मुझे अपनी क्लिनिक खोलनी है, हॉस्पिटल खोलना है, बच्चों की एजुकेशन है या रिटायरमेंट है, कोई भी आपका गोल हो सकता है फाइनेंशियल, बच्चों की मैरिज है, तो आप कैसे उसको प्लान करेंगे, कितना पैसा चाहिए होगा। सो दिस इज ए फॉर्मूला। ये आपको सब ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, उसमें मिल जाएगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन जो भी है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड, कितने साल के लिए है। यहाँ सबसे ज़रूरी है समझना कि आपके पास कोई एजेंट आएगा तो वो हमेशा आपको रिटर्न गिनाएगा कि सर इसमें 23% रिटर्न मिला, इसमें 18% मिला। वो ये नहीं बताना चाहता कि जितना ज़्यादा आप पैसा डालेंगे और जितने ज़्यादा टाइम के लिए डालेंगे, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप में से कुछ यंग लोग इसको सुन रहे हैं तो बिलीव मी, इफ़ यू इन्वेस्ट प्रॉपरली, आपकी इनकम का अगर आप 30% भी बचाते हैं तो यू कैन अर्न एटलीस्ट 20 करोड़ ऑफ रुपीज इन योर लाइफ बाई 60 ईयर्स ऑफ एज। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपने समझा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की एजुकेशन की फीस अभी 10 लाख रुपए है और हम ये मान के चलते हैं महंगाई 6%, ऑल्दो 6% है नहीं, 9 या 10% है, बट 6% मान लेते हैं। एंड 10 साल बाद मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है, तो दिस इज 10 ईयर्स। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स अराउंड 18 लाख रुपीज। तो 10 साल बाद जब आपका बच्चा इंजीनियरिंग करने जाएगा तो आपको 18 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसी को आप रिवर्स कर लेंगे कि फ्यूचर में अगर मुझे 18 लाख चाहिए तो आज मुझे कितने पैसे जमा करने पड़े, तो ये यहाँ से निकलेगा। ये सब ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, बट ये फार्मूला से आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहेगा।
So we have discussed why money is important. What is asset and liability? जो आपको पैसा देता है that is asset, जो आपकी जेब से पैसा ले जाता है that is liability. इन्फ्लेशन आपके पैसे को खाता है, तो आप जिस भी किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए. एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, it works everywhere, knowledge, wisdom, money, and it takes time. And we have discussed how to calculate our future requirement. So अब फाइनेंस मैनेज करने के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल गोल लिखने पड़ेंगे कि आपके क्या गोल हैं. आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपको क्लिनिक खोलनी है, कोई भी आपका गोल हो सकता है. इट कैन बी शॉर्ट टर्म, घर खरीदना है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. फिर आप कैलकुलेट करें कि आपकी अभी आपके पास कितनी नेटवर्थ है, आपकी कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है. कोई लोन चल रहा है, किसी को पैसे देने हैं, दैट इज लायबिलिटी. एसेट कितने हैं जो आपको आपका घर आपका एसेट नहीं, क्योंकि आप उसको बेचेंगे नहीं. सो बाकी आपके बैंक में कितना पैसा है या आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है वो कितना पैसा है. फिर नो योर रिस्क प्रोफाइल, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट है. जैसे दो आदमी को डायबिटीज है, लेकिन दोनों की सेम दवाइयाँ नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों का तरीका अलग होगा, जीने का, रहने का, खाने का, सोचने का. सो रिस्क प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क रिक्वायर्ड. रिस्क कैपेसिटी होता है कि एक पर्सन कितना रिस्क ले सकता है. से फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, इन्वेस्ट करने हैं, तो 10 से 15% वो 15 लाख रुपए तक का रिस्क ले सकता है. रिस्क टॉलरेंस क्या है कि इमोशनल लेवल पे क्या वो बंदा सही में ले पाएगा 15 लाख का रिस्क, या 3 लाख का रिस्क होते ही उसको एंजाइना होने लगेगा. तो दिस इज रिस्क टॉलरेंस, और ये हर आदमी की डिफरेंट होती है. एंड रिस्क रिक्वायर्ड, रिस्क रिक्वायर्ड इज कि फाइनेंशियल टर्म्स में आपको इतना रिस्क तो लेना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें. तो अब पैसा कमाने का जो तरीका है वो आइदर यू आर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी क्लिनिक है, कुछ है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल खड़ा किया है, या आप इन्वेस्टर हैं, आपने शेयर मार्केट या ऐसे कहीं पैसा लगाया है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल लाइफ में पहले आप अपनी अर्निंग इंक्रीज करें, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा नहीं. आप पैसे सेव नहीं कर सकते, आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. अर्निंग करने का क्या तरीका है? यू शुड अर्न मोर रुपीज पर आवर रादर देन वर्किंग मोर आवर्स. सो कीप इंक्रीजिंग योर वैल्यू. इवन इफ यू आर इन गवर्नमेंट सेटअप, आपकी जॉब सिक्योर है, योर पेंशन इज सिक्योर्ड, बट बहुत सारे लोग SGPGI से मैं जानता हूँ जो अच्छे थे और उनको कॉर्पोरेट्स ने उनकी 4-5 टाइम्स सैलरी पे उनको उठाया. एट 58 ऑफ ईयर्स ऑफ एज, जब वो सोच रहे थे कि वो रिटायर हो जाएंगे, उनको केवल पेंशन मिलेगी, उनको अपनी सैलरी से 5 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एंड दैट टू विद ग्रेट रिस्पेक्ट. सो आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करते रहिए, एंड यू शुड अर्न मोर रुपीज पर आवर. If you are young, the business is better because it gives you lot of tax rebates, and you can wealthy only by doing a business, nothing else. And create multiple source of income including proper investment. Multiple source, क्योंकि डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, और कोई भी छोटा मोटा आके उसको धमका जाता है, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर साहब कुछ कर नहीं सकते, ये मेरे उसमें आ जाएंगे. अगर आपके पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक सेकंड बैकअप है. तो मल्टीपल सोर्स का मतलब ये नहीं कि आपका एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, आपने सेकंड डायग्नोस्टिक सेंटर डाल दिया, दैट इज सिंगल सोर्स ऑफ इनकम. सेकंड सोर्स इज फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. आपकी कोई फार्मा फैक्ट्री हो सकती है, कुछ और हो सकता है, रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं आप, जो भी आप कर सकते हैं. फिर आपने पैसे कमाए तो आप पहले बजट बनाइए कि आप कितना सेव कर पा रहे हैं, कितना एक्सपेंस है आपका. At least 20% of your income should be saved and invested. टैक्स चोरी मत करिए, बट जितना आप टैक्स बचा सकते हैं लीगली बचाइए. यू हैव अर्न, आपने सेव करा,
आपकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी कोविड ने हमें सिखाया है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिली, हम लोगों की बहुत सैलरी कट हुए। सो यू शुड हैव इमरजेंसी फंड ऑफ 6 to 12 months। देन यू शुड हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस अभी जनवरी आ गई है, मार्च के लिए सारे आपके पास एजेंट आएंगे कि ये इंश्योरेंस ले लो, वो इंश्योरेंस ले लो, आपका टैक्स बच जाएगा। प्लीज डोंट टेक ओनली टर्म प्लान एंड यू कैन टेक इट ऑनलाइन। मेडिकल इंश्योरेंस इज मस्ट इवन इफ यू आर इन हॉस्पिटल, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद मुझे नहीं पता आपको कितना मिलेगा। एंड इसमें 3 होते हैं, बेस प्लान, टॉप अप एंड सुपर टॉप अप। सो प्लीज टेक बेस प्लान एंड सुपर टॉप अप। सपोज आपने 5 लाख का बेस प्लान लिया और 5 लाख का सुपर टॉप अप, तो टोटल प्रीमियम आपका कम लगेगा, कम पैसा देना पड़ेगा। इंडेमनिटी इंश्योरेंस इज मस्ट एंड दैट शुड बी इन गुड अमाउंट। हाउस एंड क्लिनिक इंश्योरेंस, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम ए कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे लिए लोन फ्री हाउस एंड लोन फ्री क्लिनिक और नर्सिंग होम इज मस्ट। आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको लोन फ्री घर होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास बहुत सारे एजेंट आते हैं, म्यूचुअल फंड वाले आते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर सब आते हैं, और आपको लगता है ये क्या एक आध परसेंट ही तो कमा रहा है। ये इन टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सोर्स IRITA का है। यूजली आपको जो पॉलिसीज बेची जाती हैं वो 12 ईयर से ज़्यादा की होती हैं, 25 साल, 30 साल ऐसे। पहले साल में मान लीजिए आपने 1 लाख प्रीमियम दिया तो 35,000 कमीशन में चला गया। नेक्स्ट ईयर से 7.5% कमीशन में चला गया। तो मान लीजिए कि आपका जो पैसा है वो 10% से ग्रो होना है, जो आपने LIC में डाला है 7.5% तो उसी के पास चला गया, तो 2.5% तो बचा। तो इसका मतलब आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, आप उल्टा पैसा नुकसान हो रहा है आपका। इसलिए इंश्योरेंस में हमेशा याद रखिए, यू हैव टू टेक टर्म प्लान, दैट टू ऑनलाइन और बड़ी कंपनी का। लोन्स जितनी जल्दी हो सकते हैं लोन फिनिश करने हैं। उस लोन पे जो टैक्स बेनिफिट मिल सकता है वो आप लीजिए। एंड लोन इज ओनली फॉर नेसेसिटी, नेसेसिटी इज हाउसिंग लोन एंड एजुकेशन लोन एंड क्रिएटिंग एसेट। अगर आप कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्लिनिक बना रहे हैं, देन यू आर क्रिएटिंग एन एसेट, उसके लिए लोन लेना ठीक है, लेकिन अपनी लिमिट से ज़्यादा लोन मत लें। एंड आपको BMW खरीदनी है, आप लोन पे ले रहे हैं, दैट इज़ ए फाइनेंशियली फूलिश डिसीजन। आपके पास पैसा है, मैं ये नहीं कह रहा आप ऑडी मत खरीदिए, BMW मत खरीदिए। आपके पास 36 लाख का चेक है देने को, बैंक में पैसा है, तो आप BMW खरीदिए। और जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ उसके बिल का हिसाब रखें, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो वी हैव डिस्कस फाइनेंशियल गोल, नेटवर्थ, अर्निंग, सेविंग। Security means insurance. Insurance means life insurance, term insurance. Mediclaim is base plan and super top up, and indemnity insurance. Loan free house and loan free clinic. अब पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। पहले भी मैंने बोला, आप सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हैं। अगर मैं आज डॉक्टर नहीं होता तो मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता था। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप अपनी स्किल इंप्रूव करें, अपनी हेल्थ इंप्रूव करें, अपने रिलेशन इंप्रूव करें। आपका जो भी बिजनेस है दैट इज योर शेयर। लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी क्लिनिक है, अपना हॉस्पिटल है, दैट इज योर बिजनेस। आपको पता है उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज बोरिंग एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। इसीलिए लोगों का पैसा नहीं बनता, क्योंकि वो बार बार उसको छेड़ते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको देखना क्या है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आप कितने साल के लिए पैसा रख रहे हैं और कितना आपको रिटर्न चाहिए। आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए। पता लगा आपने 10 लाख रुपए लगाए और वो 8 लाख रह गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी कितनी है, आप कितनी आसानी से पैसा डाल सकते हो उसमें, कितनी आसानी से पैसा निकाल सकते हो। वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कभी वो ज़्यादा रिटर्न देगा, कभी वो कम रिटर्न देगा, तो आप उसको बियर कर सकते हैं कि नहीं।
आपका अपना रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना है। जब भी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, कोई आपको कैलकुलेट कराता है रिटर्न, तो आप उसको ये बोलो कि मुझे पोस्ट टैक्स रिटर्न बताओ एंड पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न बताओ। आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपको खुद लिखना है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, कितनी समझ है आपको शेयर मार्केट की या रियल एस्टेट की या गोल्ड की। फिर आता है कि आप किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, और जिसमें भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। वो कॉस्ट कितनी है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया आपको, जो कमीशन एजेंट को मिल रहा है दैट इज़ योर कॉस्ट, और वो आपकी जेब से जा रहा है। सो जो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पैसे लगा सकते हैं, फिक्स रिटर्न एंड वेरिएबल रिटर्न। फिक्स रिटर्न इज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं इसको, जैसे आप बैंक एफडी में रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, पीपीएफ में है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, एनएससी है, ये सारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और कुछ म्यूचुअल फंड भी डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन वो थोड़े से रिस्की होते हैं। वेरिएबल रिटर्न, फिक्स रिटर्न में आपको पता है कि आपने बैंक में एफडी करी है, इसका 5% मिलेगा, 1 लाख डाला है, 1,25,000 5 साल बाद मिलेगा, सब कुछ फिक्स्ड है, ये आपको क्लियर है। सो दैट इज फिक्स रिटर्न, कब मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा। वेरिएबल रिटर्न का पता नहीं होता है, हो सकता है आपका 2 साल में पैसा डबल हो जाए, या हो सकता है उसको 8 साल लगे, या हो सकता है कुछ पैसा कम हो जाए। सो वेरिएबल रिटर्न प्रोडक्ट्स यार इक्विटी मतलब शेयर, म्यूचुअल फंड ये भी शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर। सो रियल एस्टेट सबका बहुत प्यारा है। रियल एस्टेट में इम्पॉर्टेंट है, आप पहले समझिए कि आप उस रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी लोकेशन ठीक नहीं है तो आपको रीसेल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और उसकी अच्छी आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। उसकी वैल्यूएशन क्या है, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर वो 70 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा है तो क्या वो 70 लाख की है या 50 लाख की है, 20 लाख का आपको चूना लगा रहा है। आप वो प्रॉपर्टी ले क्यों रहे हैं, आप उसको रेंट पे देने के लिए ले रहे हैं, आप उसको लेके फ्यूचर में बेचने के लिए दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, और कितने साल तक के लिए आप प्रॉपर्टी रखेंगे, हमेशा के लिए रखेंगे, 10 साल बाद बेचेंगे, ये सब आपको पहले से डिसाइड करना है, लेने के बाद डिसाइड नहीं करना है। और जो आपने प्रॉपर्टी ली उससे कितना पैसा आएगा, कब कब आएगा, और क्या प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे ही फंड होता है, 2 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो वो एडवाइजेबल नहीं है, अभी प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट मत करिए। एडवांटेज क्या है रियल एस्टेट का, कि लॉन्ग टर्म में महंगाई को बीट करने का रियल एस्टेट एक अच्छा जरिया है। टैक्स बेनिफिट्स हैं, हाउस के लिए लेते हैं तो भी है, 2 हाउस के लिए मिलता है, और अगर आप क्लिनिक या हॉस्पिटल के लिए ले रहे हैं तब भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तीसरा है कि इस बहाने आपकी सेविंग हो जाती है। कई लोग ऐसे सेविंग नहीं करते, लेकिन कोई घर ले लिया, अब ईएमआई पे करना है तो वो सेव करके करेंगे। निगेटिव पॉइंट क्या है कि इलिक्विड है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, आपको 50,000 रुपए चाहिए, तो आप उसमें से 50,000 निकाल सकते हो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी अगर 10 लाख की है तो आपको पूरा ही बेचना पड़ेगा, और वो भी तुरंत नहीं बिकेगा, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे। चांसेस ऑफ फ्रॉड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ अ नॉन ट्रांसपेरेंट। से फॉर शेयर मान लो एचडीएफसी बैंक का है तो सबके लिए, मेरे लिए भी वही प्राइस होगा, आपके लिए भी वही प्राइस होगा, लेकिन एक ही कॉलोनी में 2 फ्लैट्स होंगे, सेम 3 बेडरूम फ्लैट होंगे, लेकिन एक की कॉस्ट डिफरेंट होगी, एक की कॉस्ट डिफरेंट होगी, बिकॉज इट इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट। सो ये लिमिटेशन है। गोल्ड, लॉट ऑफ फीमेल्स आर हियर, तो गोल्ड इज नॉट फॉर ग्रोथ, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन बुरा वक्त जो होता है जैसे कोविड टाइम आया, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो, तो महंगाई के अगेंस्ट, एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज की तरह काम करता है। लेकिन इसमें भी सेम है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हैं और कितने साल के लिए ले रहे हैं। और
शॉर्ट टर्म में 1 2 3 4 साल में ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? आप गोल्ड बॉन्ड, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करे गए हैं और इसको 8 साल के लिए रखना होता है। मिनिमम यूनिट इज 1 ग्राम। गोल्ड में केवल एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, 2.5% पर एनम गवर्नमेंट देती है और ये टैक्सेबल होता है। कैपिटल गेन जब भी आप गोल्ड बेचेंगे उस पर जो आपको प्रॉफिट होगा वो टैक्स देना पड़ता है। ये केवल एक ऐसी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये बहुत बड़ी बचत है आपकी। गोल्ड ईटीएफ होता है जिसमें आप म्यूचुअल फंड की तरह थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बट ये टैक्सेबल होगा और इसमें कुछ अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में लगाने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज गोल्ड म्यूचुअल फंड मत लें, इसमें कॉस्ट लगती है और अल्टीमेटली वो भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। ज्वेलरी जो है इसके लिए शायद मार भी खाऊं मैं। ज्वेलरी जो है इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ए कंज्यूमर आइटम। तो अगर आपको ये लगता है आपने ज्वेलरी खरीदी और पैसा बचा लिया है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपने ज्वेलरी खरीदी, मान लीजिए आपने 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी, आप दुकान से बाहर निकलिए और फिर वापस जाइए कि इसको वापस करना है मुझे, तो आपको 70,000 ही देगा वो। उसकी वैल्यू 25 to 30% डाउन हो जाती है जैसे ही आपने कार्ड स्वाइप करा और पैसे उसके अकाउंट में गए। सो इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। पहनिए, इट इज़ जैसे मेल्स को शौक होता है अच्छी कार लेने को, ऐसे आप उसको एज ए कंज्यूमर आइटम पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देन कम्स इक्विटी स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में ये 200 साल का रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि स्टॉक जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो शेयर मार्केट हमें ज़्यादा रिटर्न क्यों देता है? सब लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं। उसका कारण ये है कि जो कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो आपके शहर में जो भी एचडीएफसी बैंक होगा, मान लीजिए उसमें 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सारे 50 एम्प्लॉय सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है, तो चाहे आंधी हो, पानी हो, बारिश हो, जाम लगा हो, उसको 8 बजे पहुंचना है। फिर उसके क्वार्टरली रिटर्न फिक्स हो, वो टारगेट फिक्स होंगे, उसको 1 क्वार्टर में ही करके दिखाना है, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो ये जो 50 एम्प्लॉय हैं ये दिन रात घर पे भी बैठ के और हमेशा उस एचडीएफसी बैंक के लिए, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और आपने एचडीएफसी बैंक में शेयर ले रखा है, तो वो सारे एम्प्लॉय एक तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, जो भी कंपनी है उसको अपनी ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए, तो अगर वो बैंक से लोन लेता है, बैंक उसको देगा 12-13% लोन, 12-13% इंटरेस्ट पे। अब वो जो बंदा है जिसने कंपनी डाली है, तो उसको पहले तो 12% बैंक को पे करना है, फिर वो कुछ अपना प्रॉफिट देखेगा तो 10-12% वो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो इसका मतलब वो 24% का मिनिमम प्रॉफिट टारगेट करेगा, तब तो उसका कंपनी चलाने का फायदा है। और नहीं तो केवल 12% तो आप किसी अच्छे शेयर में डाल देंगे तो 12% आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, दिन रात मेहनत करेगा जिससे वो 24% से ऊपर रिटर्न जनरेट करे। तो ये अगर आपने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, ये 24% रिटर्न जनरेट कर रहा है, 12% बैंक को गया, 12% फिर भी बचा, और जैसे ही बैंक का लोन चुकता हुआ तो वो प्रॉफिट डायरेक्ट 24% हो गया। तो चूंकि कंपनी के लोग ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, अगर कंपनी अच्छी है, और वो हमेशा प्रॉफिट पे ध्यान रखते हैं, लोगों की लाइफ अच्छी बनाते हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट होता है, और इसीलिए आपको प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छे शेयर में पैसा लगाएंगे तो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, आपको कंट्री की सिचुएशन, वर्ल्ड की सिचुएशन, फिर जिस सेक्टर की कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है या केमिकल सेक्टर की कंपनी है, उस सेक्टर में क्या हो रहा है, टेक्सटाइल कंपनी है, फिर आते हैं हम कंपनी पे कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और हमें किसी एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाना है, और इट शुड बी एटलीस्ट लॉन्ग टर्म, मीन्स 10 years। और जो वॉरेन बफे हैं वो कहते हैं कि मैं कोई भी कंपनी बेचने के लिए नहीं खरीदता, उसको हमेशा के लिए रखता हूँ, तो उससे जो डिविडेंड आता है वो उससे उनकी कमाई होती है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये हमसे आपसे पैसा लेके
एक बड़ा सा पूल बनाते हैं और ये शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है तो हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट इनके पास होते हैं जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं, और वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। SIP आप सब लोगों ने सुना होगा, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे डालते हैं। ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन चूंकि आप डिसिप्लिन थे, लगातार आपने पैसा बनाया, तो आपने इतना कॉर्पस उसमें भर दिया है कि वो जब भी ग्रो करेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलता है। और ये अपने आप डाइवर्सिफाई करते हैं क्योंकि सेबी के रूल हैं, ये किसी एक कंपनी में 7.5% से ज़्यादा नहीं लगा सकते, कुछ 7.5 ही है जहाँ तक मुझे याद है। तो किसी एक कंपनी में ये ज़्यादा पैसा लगा ही नहीं सकते, तो वो कंपनी मान लीजिए डूब भी जाती है तो आपका पैसे का बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, तो जैसे शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपको भी उसका रिस्क है। म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं बेसिकली, इक्विटी एंड डेप्ट। डेप्ट मैंने बताया जिसमें लगभग फिक्स होता है रिटर्न। इक्विटी मतलब शेयर्स में पैसा लग रहा है। तो लार्ज कैप होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज हैं। मिड कैप होती है 101 to 250। स्मॉल कैप मतलब 251 ऑनवर्ड। ये आपको बार बार नाम, आप म्यूचुअल फंड जो लोग भी जानते होंगे, ये आपको बार बार नाम सुनाए जाएंगे। ELSS होता है टैक्स सेविंग स्कीम। ये बहुत अच्छी स्कीम है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना है। सॉरी। डेप्ट फंड होते हैं जो आपका पैसा लेके बॉन्ड और दूसरे डेप्ट प्रोडक्ट में लगाते हैं, तो इसमें रिटर्न कम होता है, रिलेटिवली पैसा सिक्योर होता है। हाइब्रिड स्कीम होती है जो दोनों में लगाती है पैसा, इक्विटी में भी डेप्ट में भी। सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपके पास लोग आएंगे, जी रिटायरमेंट फंड निकला है, चिल्ड्रन फंड निकला है, ये जो है ये आपको नहीं खरीदने हैं। एक महाभारत में स्टोरी है, गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो एक दिन बहुत नाराज थे, तो ये था कि आज वो सारी पांडव सेना खत्म कर देंगे। तो उनको रोकने के लिए एक अश्वत्थामा उनका पुत्र था और एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो भीम ने हाथी को मार दिया और चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा द्रोणाचार्य ने कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने बोला हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बहुत धीरे से बोला लेकिन हाथी। तो ये जो लेकिन हाथी है ये हमें पहचानना है। जो एजेंट आएगा आपको वो अश्वत्थामा ही बताएगा। तो वो बताएगा जी ये रिटायरमेंट फंड है। आपको ये समझना है कि ये रिटायरमेंट फंड जो है आपके पैसे से उसका रिटायरमेंट इंश्योर हो रहा, आपका रिटायरमेंट इंश्योर नहीं हो रहा। चिल्ड्रन फंड है, आपके पैसे से उसके चिल्ड्रन की लाइफ अच्छी होगी, आपकी अच्छी नहीं होगी। सो बी श्योर, डोंट टेक एनी सच स्कीम्स जिसके आगे कुछ नाम लगा है, रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड। आप अपने आप से किसी एक फंड में पैसा डालिए, उसको चाहे रिटायरमेंट के लिए यूज़ करिए, चाहे घर के लिए यूज़ करिए, चाहे क्लिनिक के लिए यूज़ करिए, किसी भी पर्पज़ से यूज़ करिए। इंडेक्स फंड होते हैं जो निफ्टी आप सुनते हैं, निफ्टी में पैसा लगता है। टॉप 50 कंपनीज होती हैं, और जिन लोगों को ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है उनके लिए इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा है। कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फंड इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको ध्यान रखना है, जैसे इंश्योरेंस में मैंने बताई कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्ट प्लान लेना है, एजेंट के थ्रू नहीं लेना है। और कैसे सेलेक्ट करना है प्लान, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको केवल ग्रोथ ऑप्शन लेना है, डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन होते हैं। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया, उसके हिसाब से आप फंड सेलेक्ट करें। अब आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए? अगर आपका कोई गोल लॉन्ग टर्म है तो आप शेयर में कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब अल्टीमेटली शेयर में पैसा जाएगा। वो ELSS हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, मिड स्मॉल कैप हो सकता है, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स कैप। रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, PPF एंड NPS। PPF में आपको पता है कि श्योरिटी है कि इतना पैसा मिलेगा, और टैक्स बेनिफिट सबसे ज़्यादा PPF में है। मीडियम टर्म है 3 to 7 ईयर अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको दोनों मिक्स करना पड़ेगा, डेप्ट फंड और इक्विटी फंड का, और कुछ पैसा आप गोल्ड में रख सकते हैं।
और आधा पैसा कम से कम आप एफडी में रखें। शॉर्ट टर्म लेस देन 3 इयर्स है तो बैंक एफडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और कुछ लोग अगर डेप्ट फंड से फेमिलियर हैं, कर सकते हैं तो करेंट डेप्ट फंड में, अदरवाइज यू कीप इन बैंक एफडी ओनली। आपको रीअसेस कब करना है? मान लिया आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया या शेयर में पैसा लगाया, तो एवरी 6 to 1 ईयर यू हैव टू रीअसेस कि वो क्या कर रहा है, कहीं ज़्यादा डाउन तो नहीं जा रहा। और अगर वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है लगातार 1 डेढ़ साल 2 साल तक, तो आपको वहां से पैसा निकाल के दूसरी जगह लगाना है। आपको पैसे निकालने कब हैं? ये आपको जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब सोचना है। अधिकतर ये होता है कोई आता है म्यूचुअल फंड वाला, वो मुझसे साइन कराता है और वो ले जाता है पैसे, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमने किस पर्पज से लगाया, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब हमें पहले सोचना है। और उसका टैक्स इम्प्लीकेशन कब होगा? जब मैं पैसे निकालूंगा तब कितना टैक्स देना पड़ेगा। और जो डायरेक्ट अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप मत करें। आपको केवल अच्छा शेयर होने से बात नहीं बनती, उसको कब एंट्री लेनी है और कब बाहर निकलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपका पैसा अगर आपने गलत प्रोडक्ट में लगाया है तो वो नीचे भी जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सारे साइकिल्स में मूव करते हैं, कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे। और अगर आप कोई फिक्स टारगेट है आपका, मान लीजिए 2025 में मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है या कोई बिल्कुल फिक्स थिंग है, और मैं ये सोच के पैसा लगा रहा हूँ शेयर मार्केट में कि मैं 2025 में पैसे निकालूंगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2025 में मार्केट ऊपर होगा, हो सकता है मार्केट 30% डाउन हो तो आपका पैसा नीचे होगा। यही सेम स्टेटस रियल एस्टेट में होगा, सेम गोल्ड में होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको इनमें पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए पैसा लगाइए। विल एंड एस्टेट प्लानिंग ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इंडिया में 90% से ज़्यादा लोगों ने विल नहीं बना रखी। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी 700 से ज़्यादा डॉक्टर शहीद हुए कोविड में, और मुझे डाउट है कि उनमें से हार्डली 100 लोगों ने भी अपनी विल बना के रखी होगी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि हमें लगता है कि हमारे बाद तो क्या होगा, हमारी वाइफ को ही तो मिल जाएगा पैसा। ऐसा नहीं है। और नॉमिनी इज नॉट ए लीगल हायर। अगर किसी दूसरे मेरे भाई ने या किसी ने केस कर दिया तो वो केस डिसाइड होने में 4-5 साल लग जाएगा, स्पेशली प्रॉपर्टी में। तो इसलिए हमेशा अपनी विल जरूर बना के रखें। ये एक एसोसिएशन है वेल्थकॉन, दिस इज फाइनेंशियल एजुकेशन ड्राइव फॉर डॉक्टर्स बाय द डॉक्टर्स। इसमें एंट्री फ्री है। एंड डॉक्टर रामनाथ गुट्टे हैं मुंबई के, इज एक्सेप्शनली जीनियस, लीडरशिप क्वालिटी, हेल्पिंग नेचर, और पता नहीं बोलना बहुत मुश्किल है, इज ए एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। और अभी 10,000 डॉक्टर्स इनके अंडर में ज्वाइन कर रखे हैं। एंड यस चेंज द वे वी थिंक अबाउट मनी, और प्रॉफिट भी होता है। ये 2 किताबें हैं उनकी, शायद और किताबें और हैं। ये आप अमेजन से खरीद सकते हैं, किंडल एडिशन, फाइनेंस टुडे मीस्ट एंड अर्थ सूत्र। आई बिलीव इन गॉड, सो देयर इज स्पिरिचुअल एंगल ऑफ मनी। सबसे पहले तो आपके पास जो है उसके लिए आप थैंकफुल होइए। अभी कोविड में बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स चले गए, बहुत सारे लोगों के जॉब चली गई, मजदूरों का हमने देखा क्या बुरा हाल हुआ। तो पहले तो हमारे पास जो कुछ है हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, देन वी शुड आस्क फॉर मोर, और हमें मिलेगा। समृद्धि वर्सेस धन। हम लोग दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर की नहीं करते। कुबेर जो है सोने की लंका का मालिक कुबेर था, रावण नहीं था। कुबेर ने लंका बनाई थी, रावण ने उस पर कब्जा करा था। लक्ष्मी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस पर लिखते हैं शुभ लाभ। तो जो भी पैसा हमारे घर में आ रहा है वो हमारे लिए शुभ होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा होना चाहिए। जब आपको किसी को पैसे देने हैं तब आपको खुश होना चाहिए। थोड़ा अजीब सा है, लेकिन से फॉर आप कोई ऑटो कर रहे हैं तो आप जरूर निगोशिएट करिए। वो 120 मांग रहा है, आपको लगता है कि 100 रुपये देने चाहिए, आप 100 रुपये दीजिए उसको।
लेकिन जब आप 100 रुपए दे रहे हैं तब फिर चिक चिक मत करिए, फिर अपने दिमाग पे बोझ मत लीजिए। आप खुश होइए कि आपकी वजह से किसी का घर चल रहा है। $1 मोर, ये स्टोरी पढ़ी थी मैंने, मुझे अच्छी लगी और मैं इसको फॉलो करता हूँ। कोई भी गरीब आदमी जो मेहनत से काम कर रहा है, भिखारी को नहीं देना है। आप सब्जी खरीदते हैं, ऑटो है, रिक्शा है, जो भी आपको लगता है जो जेन्युइन बंदा है, स्वीपर है, आप उसको 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा दीजिए। आपके महीने में 500 रुपए भी नहीं खर्च होंगे, लेकिन आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि यू आर रिच, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तभी आप दूसरे को दे सकते हैं। तो एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, मान लीजिए सब्जी वाला है तो वो आपको सब्जी खराब नहीं देगा, आपका टाइम खराब नहीं करेगा, दूसरों से हटा के आपको पहले सामान देगा। सो टू समराइज ऑल, पर्सनल फाइनेंस लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं है, अपने आप सीखिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने स्किल इंप्रूव करिए, अपनी हेल्थ इंप्रूव करिए, ज़्यादा कमाइए, ज़्यादा अच्छे से सेव करिए, सिक्योरिटी ध्यान रखिए, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस, इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट फंड, बैंक एफडी, विल जरूर से बनाइए और अपने पैसों को एंजॉय करिए। थैंक यू। Thank you, Dr. Rajendra. Thank you, sir. I think it was very crisp, and I think the best thing was the language was so easy. I think मैंने पर्सनली काफी लोगों से बात करके समझने की कोशिश करी है, लेकिन आई थिंक इतना अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं आया जितना आज के टॉक के बाद आया. So thank you, sir. Thank you very much. We can take questions now. Anyone has any questions? बोल दो. Sir, first question is why the nominee is not a legal heir? नॉमिनी केवल एज ए ट्रस्टी काम करता है एज पर लीगल डेफिनेशन। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो ठीक है। मान लीजिए मेरे घर में मेरे भाई लोग सब अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक केस था जिसमें क्लिनिक में एक बार मैं प्रैक्टिस करता था, उनके बेटे की डेथ हो गई और बेटा जो था उसके नाम से क्लिनिक थी और सिस्टर जिसकी मैरिज हो गई थी उसने केस कर दिया। तो मदर और बेटी के बीच में लड़ाई चल रही थी। स्पेशली प्रॉपर्टी में ये बहुत जरूरी है। और दूसरे भी उसमें अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म्स नॉमिनी इज नॉट ए लीगल हायर, ही इज जस्ट ए ट्रस्टी। Property, it is absolutely essential to have a will. So if you don't have a will, and the will has to be registered, otherwise you have to go through the entire, even if nobody else objects, even then you have to, it goes into that succession certificate and everything. So a will, especially when you have a property which is registered, is absolutely mandatory. Otherwise your family is in a lot of trouble afterwards. Yes, ma'am. Yes. Nominee in a bank is all right. That it happens. Shares also, the nominee gets the shares. But property is the only place where you require will. Whatever you have, it has to have a will. And a registered will. And a registered will. Whatever, it may be absolutely clear. But and for multiple properties, like if one has got you can have any properties, it has to have a will. In one Yes. everything will. Properties for this is for this, or Next in question. fact you can make all your assets. And your latest will be the one which will be the Okay, so next question is on the chat box. Okay, it kind of advise, I don't know if so. It's a good time to buy gold, and if yes, then in what form? टाइम बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इट मूव्स इन फ्लक्चुएशन इन साइकिल्स एंड अगर सबसे पहली बात ये समझने की है कि इंडिया के हिसाब से गोल्ड नहीं चलता। गोल्ड वर्ल्ड के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्पेशली यूएस जो है, तो अगर यूएस की हालत ख़राब है तो गोल्ड बढ़ता है। दूसरा, गोल्ड इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, गोल्ड बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए नहीं है। एक बात समझने की, एक
बिहेवियरल फाइनेंस होता है जो मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। एक होता है रिसेंसी बायस की जो चीज़ नियर टर्म में आपको दिखती है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप उसमें कूदना चाहते हैं। जब रियल एस्टेट बढ़ रहा था तब लोग रियल एस्टेट में कूद रहे थे। अब गोल्ड बढ़ रहा है अचानक 30 से 50,000 हो गया तो लोग गोल्ड में कूदना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट ए राइट अप्रोच। You have to distribute your money at maybe 10-15% you can keep in gold और छोटा छोटा अमाउंट करके SIP करके उसको एक्यूमुलेट करें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर आपके पास 8 साल का टाइम ड्यूरेशन है तो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड ETF। ETF का एडवांटेज ये है कि आप छोटे अमाउंट से 500,000 रुपए से कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। And gold coin is not as advisable and gold jewelry is a consumer product. So question is how to invest in international market. International market, you have to go through the mutual fund is the only route till now. और मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है लेकिन जितना मैंने सुना है समझा है उसके हिसाब से इफ़ यू हैव एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ मनी एटलीस्ट $1 million देन यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट आउटसाइड। तीसरा फैक्टर ये है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही क्योंकि इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा है, तो आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? एवरीबडी वांट्स टू गो टू US, इन्वेस्ट इन US, लेकिन दैट अगेन इज रिसेंसी बायस। अगर आपने 5 साल पहले US में इन्वेस्ट करा होता तो आप आज बहुत अच्छी हालत में होते, बट आज की हालत में US की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उससे बेटर तो आप चाइना, जापान कहीं और पैसा लगाएं, बट यू कैन गो थ्रू म्यूचुअल फंड। Okay, next question is on chat. Are the returns on mutual fund taxable? यस, अप टू 1 लाख इट इज नॉट टैक्सेबल 1 साल से के बाद अगर आप निकालते हैं। और 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद 1 लाख प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स है। और जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है उसमें 3 साल के बाद आपको टैक्स लगेगा, उसमें इंडेक्सेशन लगता है। 3 साल तक आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। Can we clarify that whether those 3 years slab will be used only if you withdraw it within those 3 years, or if you withdraw after 4 years then it will become 10% for all the years? Oh, slab for mutual funds. Yeah. So the question is that the slab for mutual fund, if you're withdrawing after 3 or 4 years, let's say, so the tax is for all the 3 years or 4 years, or how is it? टैक्स आपके गेन पे लगता है। मान लीजिए आपने 5-5 हजार की SIP शुरू करी थी और आपका उसमें 2 लाख रुपए लगा था और आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल पैसा 3 लाख मिला, 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसे 1 लाख पे टैक्स कैलकुलेट होगा। वो 2 लाख तो आपका अपना पैसा है, और ये जो 1 लाख है जो डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर लगा है तो आपके टैक्स 3 साल के पहले निकालेंगे तो टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। 3 साल के बाद जो होता है इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन, मान लीजिए 5% गवर्नमेंट इन्फ्लेशन मानती है, तो 3 साल में 5-5 करके 15% आपका निकल गया। तो आपको मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हुआ तो 15% निकल गया, केवल 5% पे आपको टैक्स देना है, पूरे 20% पे टैक्स नहीं देना है। तो ये डेब्ट फंड का एडवांटेज रहता है, स्पेशली जो लोग हायर टैक्स स्लैब में हैं और जो स्पेशली रिटायरमेंट की तरफ हैं या रिटायर्ड हैं या जो कंजर्वेटिव हैं कि बहुत पैसा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये एडवांटेज है। बट कम से कम 3 साल रखें तब आपको टैक्स एडवांटेज होगा, नहीं तो टैक्स एडवांटेज नहीं होगा। Okay, next question is again on chat. So for an average person, what should be the percentage-wise distribution of investment in, let's say, gold, equity, property, mutual funds, etc.? वही मैं कह रहा था कि ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। से फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ तो मैं इक्विटी में, और मुझे इक्विटी की समझ है तो मैं शेयर में डायरेक्ट पैसे लगाऊंगा। मुझे इक्विटी की समझ नहीं है तो मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाऊंगा। और मेरे घर में मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी और मेरा कोई भाई या मेरे फादर प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, तो फिर मुझे पता होगा कि रियल एस्टेट, जैसे मैं जानता हूँ कुछ डॉक्टर्स को जो हर संडे जो है वो गाड़ी उठा के रियल एस्टेट ही देखने जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के एफर्ट कर सकते हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ये आपको खुद डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर जो आपका रिस्क टॉलरेंस है और आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में कितनी समझ है। जो इंटरनेट पे और न्यूज़ में आता है कि 100 माइनस एज, मान लीजिए आपकी 40 साल एज है तो आपका 60% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, वो शायद ठीक नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं समझ सकता हूँ कि 2 पेशेंट को सेम दवाई आप नहीं दे सकते, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनती है, उस पर पूरा लेक्चर होता है कि आप कैसे समझे कि आप क्या क्या कहाँ पैसा लगा सकते हैं। Okay. Next is a question from Dr. Achal. As per government rules, basically we have to declare our assets, so which may be put on in public domain. So how advisable it is to do that? Are we so it's supposed to, or what is मैं the? मणिपाल में था तो वहाँ एक सीए लेक्चर लेते थे, तो उनका लेक्चर अटेंड करा था, तो ही टेल्स जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन होते हैं दैट इज लाइक राहु केतु, आपके पास कोई एस्केप नहीं है गवर्नमेंट रूल्स का, तो गवर्नमेंट जो कह रही है वो तो करना ही पड़ेगा आपको। Okay. Okay. Another question is why retirement funds are not considered appropriate. You said that. So why? Can you detail on that? कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपका बेसिक पर्पस है कि आपका कॉस्ट उसमें कम होनी चाहिए। कि आप मान लीजिए आपने लाख रुपए लगाया और 20,000 रुपए तो उसी को चले गए, तो वो 20,000 इन्वेस्ट नहीं हुए, 1-2% और चला गया, तो पता लगा साल में आपका 3 से 5% पैसा जो है वो कॉस्ट मेंटेनेंस में चला गया, और महंगाई दर 6% है, तो आपको रिटर्न कैसे आएगा इन्फ्लेशन से ज़्यादा। आप रिटायरमेंट फंड इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके पास पैसा है, इसलिए नहीं इकट्ठा कर रहे हैं कि एजेंट के पास पैसा जाए। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि इवन बीइंग ए डॉक्टर बेस्ट ऑफ द क्लास, हम फाइनेंस से डरते हैं, हम समझना नहीं चाहते। और बिलीव मी, अगर आप फाइनेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो हार्डली 2-3 मंथ्स में आप इतने समझदार हो जाएंगे कि आप उस एजेंट से ज़्यादा डिसाइड कर सकते हैं। तो आप उसको पैसा क्यों दे रहे हैं? आपका अपनी मेहनत का पैसा आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, या आपके जो भी हॉबीज़ हैं उसके लिए। आप अपना पैसा किसी और को मत दीजिए। कोई भी रिटायरमेंट फंड, कोई भी चाइल्ड फंड आपके लिए नहीं है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, आप जो अनबायस्ड बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, एक पीवी सुब्रमण्यम है, उनकी एक किताब भी है, गेट रिच ए वेल्थ प्रिस्क्रिप्शन फॉर डॉक्टर्स। ये भी ये कहते हैं ये 40 साल से इक्विटी मार्केट में है और डॉक्टर्स 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स को एडवाइस कर चुके हैं। तो कोई भी एजेंट आपके भले के लिए नहीं है, कोई भी एजेंसी आपके भले के लिए नहीं है। दे आर देयर टू मेक देयर ओन प्रॉफिट। आपको अपने पैसे के बारे में खुद सोचना है। तो अगर आप वो भी आपसे पैसा लेके एक दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं, मान लीजिए एसबीआई कह रहा है कि हम रिटायरमेंट फंड है, वो आपसे पैसा लेके आपको पैसा कैसे वापस करेगी? वो कहीं तो इन्वेस्ट करेगी ना। वो आपसे पैसा लेके शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करने वाली है। तो आप क्यों नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते? आप बीच में एसबीआई को ला के आप उसको क्यों पैसे देना चाहते हैं? आपको लगेगा 1-2% कोई ज़्यादा नहीं है। आप नेट पे जाइएगा, जीरोधा की साइट पे जाइएगा, कहीं भी जाइएगा। अभी मुझे टाइम नहीं था, नहीं तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता। अगर आप 25-30 साल के हैं और 30 साल आपने पैसा रखा, आप कम से कम 25 से 30 लाख रुपए उस आदमी को देंगे जिसको आप एजेंट कहते हैं। वो 25 से 30 लाख आपके परिवार का हक है, आपका एजेंट का हक नहीं है। सॉरी, आई बिकम एंग्री अबाउट दैट, क्योंकि मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है, एजेंट्स ने बहुत बेवकूफ़ बनाया है। सो आई टुक इट एज चैलेंज कि मैं डॉक्टरों का पैसा एजेंट के हाथ पे बर्बाद नहीं होने दूंगा। I think it's very logical, sir. Yeah. Now, when you say that, yeah, yes, please. You can ask. I'll repeat it. So I just wanted to ask, profit booking versus being invested in mutual funds, which one is advisable given if there is a increase in the share market, at that time we take out the money and reinvest at the lows? Sir, did you get the question or should I repeat it? No, sir. So the question is that how important it is to be like book the profit or to remain invested in mutual funds. So Okay. Yeah. This depends on your goal. Both things are there. मेनली म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि आपको शेयर मार्केट का बहुत आइडिया नहीं है,
थोड़ा आइडिया है, तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब सपोज आपका गोल नियर बाई है, 1-2 साल या 3 साल में है, तो आप पैसा निकाल लें। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है 5-6-7 साल है, 7 साल एटलीस्ट, तो आप पैसा बना रहने दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा। एक तो मैंने बताया कंपनी फैक्टर की एवरी पर्सन जो भी कंपनी है वो हमेशा ग्रो करना चाहती है, तो आपका पैसा ग्रो होगा। दूसरा, वॉरेन बफे जी कहते हैं, और वो बात सच है, कि एवरी कमिंग जनरेशन विल लिव ए बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। तो आपका पैसा बढ़ना ही है, ऊपर ही जाना है। तो अगर आपको अभी ज़रूरत है नियर बाई 1-2 ईयर 3 ईयर्स में, तो आप पैसा निकाल लें, मार्केट हाई है। अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है तो आप उसको कंटिन्यू रखें। ज़्यादा डर लग रहा है तो 50-50 कर लें, 50% निकाल लें, 50% रहने दें। Okay, next question is PPF versus LIC for tax saving. Which one you'll prefer? इंश्योरेंस में केवल एक ही चीज करनी है, टर्म इंश्योरेंस। Okay. इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, एनपीएस है, शेयर मार्केट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट टू बी मिक्स्ड। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपका पैसा लेके शेयर मार्केट में ही लगाने वाली है। वो कहाँ से पैसा देगी आपको, उसके घर में नहीं रखा है पैसा। तो अल्टीमेटली जब आपका शेयर मार्केट में पैसा लगना है, तो आप फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू खुद क्यों नहीं लगाते? आप 2% उसको एक्स्ट्रा क्यों देंगे, 2% उसको देंगे, 2% म्यूचुअल फंड में जाएगा, 4% जाएगा, 6% इन्फ्लेशन है। आपका पैसा कहाँ से ग्रो होने वाला है? मैंने एक कैलकुलेशन किया था, मेरे एक कोलीग को ऐसे ही पैसे वापस करने वाली पॉलिसी बेची गई थी, और उसको एंडोमेंट प्लान बोलते हैं, कि आपका इतना पैसा आपको इतने साल बाद मिलेगा। उसको बेचारे को 30 ईयर्स ऑफ एज पे बेची गई पॉलिसी, और लगभग वो 45 लाख रुपए देगा। 25 साल बाद उसको 85 लाख रुपए मिलेगा, और 55 साल पे उसका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। 55 साल पे उसकी लायबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे, बच्चों की शादी होनी होगी, अपना रिटायरमेंट का पैसा लेना होगा, उस टाइम उसका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। जो 85 लाख वो दे रहे हैं, मैंने एक सिंपल जो ऑर्डिनरी म्यूचुअल फंड है, बहुत हाई फाई नहीं, इंडेक्स फंड में भी पैसा रखता है, तो उसको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो आपका पैसा लेके एलआईसी कहीं अपने पास से नहीं दे रही, वो शेयर मार्केट में ही लगाएगी। तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना चाहते हैं, क्यों उसको फीस देना चाहते हैं? इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को तो घर में घुसने ही नहीं देना है, केवल टर्म इंश्योरेंस लेना है, और बाकी जो भी करना है आप अपने आप करिए, कोई मुश्किल नहीं है। पीपीएफ में डालना क्या मुश्किल है, आपको एजेंट क्यों चाहिए? म्यूचुअल फंड में डालना कौन सा मुश्किल काम है? Right. आप घर बैठे एसआईपी कर सकते हैं। Okay, next question is from audience here. बिल्कुल दुरुस्त है कि टर्म इंश्योरेंस देनी चाहिए, पर हम से काफी लोगों ने काफी वक्त पहले ही रूटीन एलआईसी ली थी, और उनके मैच्योर होने का टाइम आ रहा है और 5 साल बाद, तो वो जो भी पैसा आएगा कम ही सही, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? सपोज किसी के 15 लाख आ रहे हैं, तो वो कहाँ रखे उस पैसे? Okay, so question is that उसके ऊपर भी कोई इन्वेस्ट करने पे उस पे फिर टैक्स भरना पड़ेगा। हाउ टू सेफगार्ड दैट मनी? okay, so there are many senior people who already have a LIC policy or something which is जी। going to get mature very soon. हाँ 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 So they'll get a corpus. जी। So how to invest that money, and second, how to safeguard tax on that money. वो तो टैक्स फ्री होगा अगर इंश्योरेंस से मिल रहा है। और इन्वेस्ट कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि उनको और क्या रिक्वायरमेंट है, कोई लोन वगैरह तो नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है, अच्छी पेंशन मिलती है, तो दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड। रिटायरमेंट में जो होता है, एक बेसिक कंसेप्ट इज और बास्केट सिस्टम। बास्केट इज 60 से 70 साल के लिए एक बास्केट, 70 से 80 साल के लिए एक बास्केट, 80 से ऊपर साल के लिए एक बास्केट। तो जो 60 से 70 साल है उसमें आप एक्टिव हो गए, हेल्दी हो गए, मोस्ट प्रोबेबली यू विल डू सम जॉब आल्सो, तो उस समय आप वो पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल लें, अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डाल सकते, तो 10 साल में आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ही कंजर्वेटिव हैं तो फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड में डालें, और आपको होपफुली आपको इंडेक्स पेंशन मिलेगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन वैसे ही नहीं होगी। आई डोंट नो आपको पेंशन मिलती है कि नहीं है। Right, sir. Achha, there's one question I think which is very relevant for all government employees. जी। We
are supposed to invest in NPS for a retire as a pension, a substitute to pension. So Right. can we just rely on NPS alone, or as compared to SIP or mutual, or we should invest somewhere else also? नहीं, alone you cannot rely on. उसमें टैक्स एडवांटेज तो है, बट उसका शायद कॉर्पस इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा कि आप उससे पेंशन चला सकें. आपको एक्स्ट्रा मनी इकट्ठा करना पड़ेगा. वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं. दूसरे उसको फ्लक्चुएशन में होगा. उस समय मान लीजिए मार्केट लो है और आपने पैसा निकाला तो आपको कम पैसा मिलेगा. तो आप 2-3 साल 4 साल जब तक पैसा बढ़ता नहीं है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा. तो इसलिए एक सेकंड बैकअप प्लान आपको रखना पड़ेगा. Okay, right. Yeah. Question is कि NPS versus mutual funds, which is better? I asked, no, that's क्या बोला उन्होंने? NPS के साथ में कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ेगा. You have to. Versus है, Okay, so NPS versus SIP. mutual fund. SIP mutual fund. अच्छा, म्यूचुअल फंड. सर हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है. बिकॉज हमें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, तो हमें SIP के थ्रू ही करना पड़ेगा. गोल्ड इज वेरिएबल, रियल एस्टेट, स्पेशली जो लोग आप लोग रिटायर हो रहे हैं, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर हो रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा प्लीज़ रियल एस्टेट लेके अपनी जान की आफत मत मोल लें. क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप 4 घरों से जाके पैसे इकट्ठा करके किराया ला के ये सब आप नहीं कर पाओगे. और कोई बैठ गया मकान पे कब्जा करके तो आप खाली भी नहीं करा पाओगे. तो यू हैव टू पुट मनी इन म्यूचुअल फंड. और म्यूचुअल फंड आप रिस्क के हिसाब से चूज करिए कि आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है. और मुझे आइडिया नहीं है कि आपको NPS में कितना रिटर्न मिलेगा. आप मोटा मोटा ये लेके चलिए कि जितना भी आप कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो उसका 6% आप एनुअली विड्रॉ करेंगे तो आपका कॉर्पस मेंटेन रहेगा आज की डेट में जो हालात हैं. और उसमें आप कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखेंगे, कुछ डेब्ट में रखेंगे. Right. Next question. होपफुली आंसर. My question is more or less saying how to smartly manage NPS. Like the government policies are changing, so can we manage NPS, some corpus of NPS ourselves, or we have to depend on the government policies itself? Like we are giving, every month salary say deduction, which is going without our knowledge. So we are just getting the pay slip and we know this much is being, cut. But can we manage it partly ourselves to have a? No, I think if somebody can explain it better, it can come here because. नहीं है option है. Option is there. Just हाँ, option is there. Is there? You can just speak. It will not be audible. Hello, Dr. Rajendra. This is Dr. Sarika here. Yeah, ma'am. So I have a question that how can we manage our NPS more smarter way, because government has some policies and as a government employee, we are getting a deduction from our salary of NPS without our knowledge because we are not aware of it. So we just get the, deductions every month in the salary slip. But can we manage partly our NPS, funds and get, smarter benefits out of it? Is there a way? उसमें ऑप्शन होता है मैम. यू कैन मैनेज इट एक्टिवली और पैसिवली. अभी तक आपका पैसिवली मैनेज हो रहा होगा. आप अपने NPS अकाउंट पे जाएंगे तो उसमें एक्टिव ऑप्शन होता है. गवर्नमेंट के लिए शायद मुझे नहीं पता वो वैलिड है कि नहीं है. अदरवाइज यू कैन चूज कि आप इक्विटी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो नहीं है. अगर वो नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. बट अदरवाइज NPS इज नॉट ए बैड थिंग. क्योंकि अभी जो कोविड क्राइसिस आया, मेरे एक फ्रेंड आए थे तो उनके 2 ही चीज पॉजिटिव में थे, इंडेक्स म्यूचुअल फंड एंड NPS. Okay. Yeah. So, but I got to know that even the government employees can partly manage their NPS funds, but I'm not really able to get the, proper information. So, could you suggest? आपको प्रैन नंबर अलॉट हुआ होगा मैम. आप Yes. NPS की वेबसाइट पे जाके प्रैन नंबर अपना अकाउंट क्रिएट करिए. Okay. और उसमें ऑप्शन आते हैं कि आप HDFC में रखना चाहते हैं, LIC में रखना चाहते हैं, और फिर किस प्रोपोर्शन में रखना चाहते हैं, आप इक्विटी कितना रखना चाहते हैं, डेब्ट कितना रखना चाहते हैं. उसकी अपर लिमिट फिक्स है कि 75% से ज़्यादा आप इक्विटी में नहीं रख सकते. Okay. लेकिन वो आप चूज कर सकते हैं कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर रहना चाहते हैं, मॉडरेट रहना चाहते हैं, या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहना चाहते हैं. Okay. Okay. Thank you so much. Any more questions?
There are some question on chat also. I will take them. No, okay, I was taking most of them. Yeah, there I think new questions have Which come. is the best free online resource to help for financial management? You are the best resource. Nobody else will help you. So online, I don't know. There are a lot of tools like this Grow app is there. उनका tool है जो आपको goal calculate करने में help करता है. Yes, I तो think all आप goal उसमें calculate कर सकते हैं, but आपको manage खुद ही करना पड़ेगा. There are many online investment apps, especially share market. It is safe and wise. किसी भी छोटे मोटे ऐप में मत जाइएगा क्योंकि वो कई बार कंपनीज बंद हो जाती हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होती है बाद में स्टेटमेंट निकालने के. तो जो बड़े नाम हैं, जिरोदा है, आईसीआई है, शेर खान है, मैं पर्टिकुलरली जिरोदा यूज करता हूँ. तो हर एक में मत जाइएगा. आप थोड़े पैसे बचाने के लिए छोटे उसमें मत जाइएगा जो अननोन सा हो. आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा उसके बारे में रिव्यूज क्या है. वाई वी शुड नॉट बाई डिविडेंड म्यूचुअल फंड. डिविडेंड म्यूचुअल फंड होता है कि जो पैसा इन्वेस्ट हुआ उसमें से कुछ पैसा आपको वापस कर देते हैं, तो आपकी बेसिकली एनएवी कम हो जाती है. जो आपका पैसा बढ़ रहा था वो कम हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. आप म्यूचुअल फंड में पैसा इसलिए रख रहे हैं Dr. Rajendra, we are not able to hear you. I don't know, it's network at our end or your end. Dr. Vikas, can you hear us? Sorry, yeah, I think we lost the signal in between. Yeah. Now it is there. In present scenario, where to invest? Scenario हमेशा ही ऐसे रहेगा, कभी up कभी down. आप अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे चलते रहिए. कैन इन्वेस्टमेंट बी इन गोल्ड बी मेड ऑनलाइन? आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, केवल फिजिकल डिलीवरी के अलावा. आप एसजीबी में, ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में, सब जगह ऑनलाइन ही है सब कुछ. आप ऑनलाइन आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे ऐप हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट स्टॉक्स में कराते हैं, और मैं उनको सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि आपके हाथ में, आपके सामने रहता है, तो आप कुछ ना कुछ क्लिक करते रहते हैं, और वो बहुत बैड हैबिट है. आप खरीदेंगे, बेचेंगे, आपका पैसा कभी ग्रो नहीं होगा. प्लीज शेयर डॉक्टर श्रीवास्तव ईमेल एंड मोबाइल नंबर. माय मोबाइल नंबर इज 8449800064. अंजलि मैम कैन शेयर इट, और ईमेल भी मैं मैम को शेयर कर दूंगा. We will share it in the group, sir. Is investing share online in share is easy? Easy तो है, लेकिन पैसा खत्म हो जाएगा. शेयर की नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है. Long should one attempt as long term only to get dividend? डिविडेंड जो है, जब आप रिटायरमेंट के आसपास होते हैं तब आपको डिविडेंड वाले शेयर्स में डालना चाहिए. तब तक आपको पैसे ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए. हाउ टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग रेगुलर म्यूचुअल फंड टू डायरेक्ट? इसमें कोई तरीका नहीं है. आपको रेगुलर बेचने पड़ेंगे और डायरेक्ट खरीदने पड़ेंगे. कोई स्विच ओवर का ऑप्शन नहीं है. In NPS, both Tier 1 and Tier 2 good investment for investment, good instrument for investment. Tier 1 basically tax rebate के लिए. Tier 2 is saving option. Better कि आप Tier 1 पे stick करें और Tier 2 की जगह आप directly mutual fund लें. Interest rate in PPF schemes are decreasing for last many years, so it is still advisable to continue PPF. पीपीएफ में एक ही एडवांटेज है कि आपको टैक्स कभी भी नहीं देना पड़ता. दूसरा, पीपीएफ ये है कि आपको कोई भी कोर्ट आपका पैसा अटैच नहीं कर सकती. मुझे एक जानकारी है एक पर्सन की, उसको उसके अगेंस्ट उसी के कॉलीग ने केस कर दिया था, तो उनकी पेंशन वगैरह सब रुक गई थी. उस टाइम उनका पीपीएफ काम आया था. तो आप थोड़ा बहुत पैसा पीपीएफ में रख सकते हैं, स्पेशली जब आप रिटायरमेंट के आसपास है, 55 साल के आसपास, तब आप पीपीएफ में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए. This chat is over, sir. Any Yes. other question? I think we'll take just last two questions from here.
who have gone, should they now switch over to mutual fund by stopping LIC? What should they do? Okay. So the question is that if somebody has recently started a LIC policy, should after this session should they stop LIC and move to somewhere else, or what is your advice? अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया तो ठीक है, नहीं लिया है तो आप डेफिनेटली घाटे में रहेंगे। अगर 1-2 साल 3 साल भी हुए हैं तो आप बंद कर दीजिए। आपको थोड़ा लॉस होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहेंगे अगर आप वो पैसा सही से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन पहली बात ये है कि पहले आप टर्म इंश्योरेंस ले लें जिससे वो कवरेज आपका स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, तब आप उसको पहले वाले को सरेंडर करें। एकदम से सरेंडर मत कर दें क्योंकि आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। Okay. Dr. Vikrant. No? I think we'll share the mobile number. Yeah, ma'am. Dr. Sangeeta. Like if one is already invested in mutual funds through a agent, if already I have invested in mutual funds and it's been for years through an agent, how to eliminate the agent now? Okay. So somebody has been investing through an agent for years. Now how to eliminate this agent? नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका एजेंट अच्छा है और आपको मतलब जो आप उसको फीस पे कर रही हैं 1% 2%, अगर उसके हिसाब से वो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज एलिमिनेट करने में तो कुछ नहीं है। आपको जैसे मान लीजिए आपके पास HDFC का म्यूचुअल फंड है तो आप HDFC का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप अपना रजिस्टर करिए, अकाउंट बनाइए, वहाँ पे स्टॉप का ऑर्डर दीजिए, आपका वो स्टॉप हो जाएगा। जब वो स्टॉप हो जाए आप दोबारा फोलियो में उसी वेबसाइट से आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड ऑनलाइन करके वो है वेबसाइट है, कैंप्स है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो डायरेक्ट है। जीरोदा आपको डायरेक्ट वो देता है। So yeah, last question for the day. Term insurance किस एज तक एडवाइजेबल है? Till what age you should invest in term insurance? आपको ये सोचना है कि किस एज तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। सपोज आपको लगता है कि 65 इयर्स तक आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी तो आप 2-4 साल आगे 70 साल तक ले लें। आपको लगता है 60 इयर्स तक हो जाएंगे तो 65 इयर्स तक ले लें। बहुत लंबा जो लोग लेते हैं 80 साल 90 साल 100 साल, दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि उस टाइम पे 2 करोड़ रुपए अगर आपको 100 साल की एज में मिलेगा उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, और आप आज उतनी मेहनत करके उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। Right. Okay. Sir, thank you very much. I think you deserve. Hopefully people are satisfied with the answer Very and they can send me the, I have shared my number, so you can contact me. I have a small group also for basic finance for doctors, so I can add you there. Thank you, sir, for sparing your time and Thank you. making this evening worthwhile for us. And I'll also take this opportunity to thank the MLH team, Mr. Sachin Malhotra and Mayuri ji. I think they were very helpful in setting up this meeting, in making the backgrounds and everything, though sadly we could not use the background. And I would like to thank the faculty here and for this initiative. To tell you, Dr. Rajendra, this is the first physical meeting we are having this thing, and this is the first lecture of a series which we have planned. So we are very happy and very positive today. And thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Anjali man, and thank you all of you who asked question and supported me. Thank you. Thank you. I'm sure after we share your number, many members will bug you with their inquiries. I will be available from 7 to 10 p.m. morning time. Maybe I may not be able to take the call. Okay, right. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, Anjali ma'am. Thank you. And Dr. Anjali, thanks to you also for arranging this.